how are you doing? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter, Ramanujan's journey to fame. Before starting the chapter, let's have a look on lesson goal. Children, you people will learn from Srinivasa Ramanujan's story the importance of recognizing and appreciating talent, collaborating with others to overcome challenges, and the impact of supportive mentors. The narrative also highlights cultural sensitivity, breaking societal expectations, and the lasting legacy of achievements. Overall, it encourages children to embrace diversity, persevere in their interest and understand cultural and historical context. So बच्चों, इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलने वाली है, ये जानने वाले हैं, आप ये सीखने वाले हैं कि हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं चैलेंजेस को और सपोर्टिव मेंटोर्स का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में. Right? About the story revolves around the mathematical genius Srinivasa Ramanujan, whose theorems, though initially misunderstood by Professor G.H. Hardy, were recognized as groundbreaking. With the help of collaborator Littlewood, they deciphered Ramanujan's work, leading to global recognition and honors. The narrative touches on Ramanujan's challenges, cultural sensitivity and the tragic brevity of his life. So इस कहानी के थ्रू बच्चों आपको जो नॉलेज मिलने वाली है, आप किसी की लाइफ में जो चैलेंज आते हैं वो लाइफ में चैलेंज ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ उन चैलेंजेस में ही ख़त्म होने वाली है. उन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम किया जा सकता है ये भी हम सीखने वाले हैं इस स्टोरी से. सो आइए स्टोरी रीड करते हैं, बट बिफोर दैट रेडी अप. थिंक अबाउट योर फेवरेट थिंग टू डू इन मैथ. व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग और फन फॉर यू? शेयर विद द क्लास. लेट्स रीड द स्टोरी. वन फाइन मॉर्निंग इन 1913, Professor G.H. Hardy, a noted mathematician of Cambridge University, received among other letters a large envelope with Indian stamps on it. When he opened it, he found sheets of paper on which there were written lines after lines of symbols. There was also a letter by Srinivasa Ramanujan in which he asked Hardy to give an opinion on the mathematical discoveries made by him. The papers had many theorems with no proofs. Hardy got bored reading them. He put them aside and went on his day's routine, but the theorems kept passing through his mind again and again. So ये कहानी है एक 1913 की, जब प्रोफेसर G.H. हार्डी जो नोटेड मैथमेटिशियन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे वो, और उनको एक लेटर मिलता है एक बड़ा सा एनवलप में जिसके ऊपर इंडियन स्टैम्प थी. तो जब वो उसे खोलते हैं तो उनको कुछ शीट्स मिलती हैं उसमें से, और वो शीट्स पर लाइंस रिटर्न है, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, और वो लेटर था श्रीनिवास रामानुजन जी की तरफ से. उन्होंने उनको वो भेजे थे पेपर्स की उनकी ओपिनियन जानने के लिए, मैथमेटिकल जो डिस्कवरीज उन्होंने की थी. अब ये थ्योरम सी बिना प्रूफ के, और हार्डी ने उन्हें पढ़ा लेकिन वो ज़्यादा उससे कुछ इम्प्रेस हुए नहीं और बोर फील करके उसको साइड पे रख दिया और अपने डेली रूटीन में लग गए. अब ये जो थ्योरम्स थी वो पूरा दिन उनके माइंड में दोबारा चलती रही. Right. In the evening, when he was back in his room, he had another look at the papers. फिर से उन्होंने, मतलब उनके दिमाग में तो चल रहा था, फिर से उन्होंने पेपर्स पर एक नज़र डाली. The writer of these papers is indeed a genius. But let me talk to Littlewood, he said. अब जो जिसने भी श्रीनिवासा उन्होंने लेटर भेजे था, उन्होंने पेपर भेजे थे, तो वो बोल रहे थे कि ये जो पेपर जिन्होंने भेजे हैं, जो राइटर हैं इनके, सचमुच जीनियस है, लेकिन उन्हें बात करनी थी लिटलवुड से. ही सेंट फॉर लिटलवुड ऑल्सो ए मैथमेटिशियन एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. वो भी वहीं पे मैथमेटिशियन थे. बोथ ऑफ देम वेंट
through the papers again and again. Before midnight, they knew that the writer of these papers was certainly a genius. अब दोनों इकट्ठे बैठ गए, पेपर देख रहे थे. अब दोनों को ये महसूस हो गया कि जिसने ये लिखा है, दोनों वो तो जीनियस है. No way, we will have to call this brilliant man here. But where is the money? Protested Littlewood. Was Trinity for? The money was arranged and dispatched to Ramanujan the next day. But the greater problem was that poor Ramanujan was a Brahmin. His mother was even more strictly, religious. It was difficult for him to think of crossing the sea and going to England. अब वो तो जी एक और प्रॉब्लम आ गई, वो ब्राह्मण थे और उनकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, है ना. उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो समुद्र पार करके इंग्लैंड में जाने का सोच भी नहीं सकते थे. One night his mother, who had great respect for the goddess of Namakkal, a town in Tamil Nadu, had a dream in which she saw the goddess decree, "Your son has a bright future, don't be superstitious and don't block his way to fame. Let him cross the seas and earn fame." अब जिन वो देवी को मानते थे उनको वो सपने में दिखाई दी और ये कहती हुई दिखाई दी कि इस तरह के अंधविश्वास में मत पड़िए, उसे आपका बेटा जो है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है उसका, उसको जाने दीजिए, उसका रास्ता ब्लॉक मत करो, उसको नेम फेम कमाने दो. Allowed Ramanujan to go. In 1914 he arrived in England. He was not very strictly religious, but he maintained certain religious values in life. He cooked his vegetarian food himself in his room. अब वो इतना ज़्यादा तो रिलीजियस नहीं था, बट काफ़ी हद तक वो उन वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में अपनाते थे. तो उन्होंने अपना जो वेजिटेरियन खाना है अपने कमरे में ही अपने आप बनाया. England gave Ramanujan a rare honor. The Royal Society elected him a fellow at the age of 30. Trinity College also selected him a fellow the same year. He was the first Indian to receive these honors, but soon he became ill and returned to India in 1919. तो वहाँ उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें फेम मिला, लेकिन बीमार पड़ने की वजह से वो वापस इंडिया आ गए. As luck would have it, he died on August 20, 1920. At the young age of 33, Hardy felt very sad. जो हार्डी थे वहाँ जो जिनको वो लेटर भेजा गया था, he felt very sad at his death. It was due to Hardy's honest efforts that Ramanujan earned worldwide fame. अब उनको उनकी बहुत छोटी एज में उनकी जो मृत्यु हो गई थी, सिर्फ 33 एज में, 33 ईयर्स के थे वो, और तभी उनकी डेथ हो गई थी. तो इतनी छोटी सी एज में उनका चले जाना हार्डी को बहुत दुखी किया उस बात ने. अब ये सब चीज़ें जो हार्डी ने उनको पहचाना कि उनमें इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, वो इतनी इंटेलिजेंट है, ये जो फेम मिला था वर्ल्ड वाइड फेम रामानुजन जी को, ये सिर्फ हार्डी के एफर्ट्स की वजह से हुआ था. राइट. सो हमें भी दूसरों के लिए ऐसे एफर्ट करने चाहिए. अगर किसी में स्किल्स है, हुनर है, उसे पहचानो और आगे लेकर आओ. सो वी हैव सम डिफिकल्ट वर्ड्स बच्चों, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. डिस्कवरीज, फाइंडिंग्स और इन्वेंशंस. जीनियस, एक्सेप्शनल इंटेलेक्ट. प्रोटेस्टेड, एक्सप्रेस्ड डिसएग्रीमेंट. ब्राह्मीण, हिंदू प्रीस्ट. डिक्री, ऑफिशियल ऑर्डर और डिसीजन. फेम, वाइड रिकॉग्निशन. Fellow honorary title. Theorems, mathematical propositions. Midnight, 12 o'clock at night. Dispatched, sent off. Respect, deep admiration. Superstitious, irrational beliefs. Vegetarian, someone who eats no meat. Tricky words, envelope, stamps, symbols, opinion, proofs. Routine, religious, arranged, goddess, honors. So now we have speaking session as usual. पिक्चर देखिए और आंसर्स को orally बताइए. Look at the picture carefully and answer the questions orally. And in listening session बच्चों, your teacher will read out a short story in the class. Listen the story carefully and fill in the blanks. तो आपको स्टोरी सुनाई जाएगी, उसको ध्यान से सुनिए और ब्लैंक्स को फिल कीजिए.
राइटिंग सेशन में आपके पास बेटा कॉम्प्रिहेंशन होगा. यूज द पेंसिल एंड फिल द करेक्ट सर्कल गिवन अलोंग साइड MCQs. फिल इन द ब्लैंक्स. तो चैप्टर में जाइए, करेक्ट वर्ड ढूंढिए और यहाँ ब्लैंक में फिल कर दीजिए. सी पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट्स आपके चैप्टर में से ली गई हैं. आप इन स्टेटमेंट्स को चेक कीजिए. अगर आपको लगता है स्टेटमेंट सही है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, देन राइट टी, अदरवाइज राइट एफ. डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. लाइक व्हाट डिड हार्डी इनिशियली थिंक ऑफ रामानुजन्स थ्योरम्स. आपको पता है क्या हुआ था, पहले बोर हो गए थे वो, है ना, उनको साइड पे रख दिया था, उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दिया. सो आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे. वर्ड पूल. ए पार्ट, राइट वन वर्ड फॉर ईच कलेक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड हर ऑप्शन के लिए, हर सेंटेंस के लिए चूज करिए. बी पार्ट, मेक योर ओन सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स एंड इन ग्रामर इन एक्शन. वी हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टुडे इन ग्रामर टॉपिक. The subject of a sentence is the person, place, thing or idea that the sentence is about. It tells us who or what the sentence is focused on. So, आपको पता है सब्जेक्ट, हमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो पर्सन, प्लेस या थिंग और आइडिया हो सकता है, राइट. और ये किसी भी उसके बारे में अगर होगा तो सेंटेंस पे हमें फोकस क्या है कि सेंटेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमें ये किसके बारे में और कौन है इससे पता चलता है कि काम किसके द्वारा हो रहा है या कौन कर रहा है. दैट वी हैव टू फोकस इन द सेंटेंस. प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग टू द सब्जेक्ट. अब यहाँ पे प्रेडिकेट समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और क्या हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, राइट. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. द कैट विच इज सब्जेक्ट slept on the window sill. अब predicate है बाकी part. My sister is subject and baked a delicious cake is predicate. The sunflowers is subject and bloomed in the garden is predicate. Children subject laughed joyfully is predicate. Right? So now encircle A part, encircle the subject and underline the predicate from the given sentences. आपको encircle करना है subject को और underline करना है predicate को. B part, complete the sentences by adding appropriate predicates. And we have now thinking corner. You notice that the air quality in your neighborhood has deteriorated and there is a significant increase in air pollution levels. What would you like to do in response? आप देख रहे हो कि एयर क्वालिटी आपके जो नेबरहुड है उसमें बहुत ज़्यादा गिर गया है उसका स्तर. तो आपको इंक्रीज एयर पोल्यूशन के लेवल को आपके पास देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे वो बढ़ता जा रहा है आपका एयर पोल्यूशन लेवल. सो आपको रिस्पॉन्स में आपका क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, उसके लिए आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उनको टिक करना है अगर आपका सेम रिस्पॉन्स होने वाला है, राइट. वी हैव क्रिएटिव साइकिल. क्रिएट अ स्मॉल बुकलेट समराइजिंग रामानुजन्स लाइफ अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिक्स. इंक्लूड इमेजेस, डायग्राम्स और स्केचेस टू मेक इट विजुअली एंगेजिंग. तो आप क्या करने वाले हैं, आप समराइज करें पहले एक बुकलेट रामानुजन जी की लाइफ में, उनके अचीवमेंट, उनके कंट्रीब्यूशन जो भी मैथ्स के लिए उनके थे, और इसमें इमेजेस भी डाल सकते हैं आप, डायग्राम्स भी डाल सकते हैं आप, स्केचेस भी आप इसे विजुअली एंगेज करने के लिए ताकि ये एकदम लाइवली लगे उसको, आप उसके स्केचेस भी डाल सकते हैं, राइट. एंड व्हाइल डूइंग दिस हैव फन. Enjoy.